Okay, let's start. So हम लोग जो है पावर वाला डिस्कशन किया था, राइट, लास्ट टाइम. And basically power in any kind of a wave, instantaneous power, can be found as negative tension and both the derivatives का product. This is true for all shapes, not just sine waves. And if you have a sine wave, you can put the y value there, and then you get the power being transmitted across some point x at some time t, right? It varies from place to place. It varies at a place from time to time also. And the transmission of power is, I mean, even if you stand in a place, the transmission of power changes. Sometimes more power comes in and less power goes out. And so in that period, the energy of that particular particle increases and then it decreases. So periodically जो है power का flow भी fluctuate होता रहता है, जिसके कारण locally energy का amount भी change होता रहता है, right? तो ये तो हो गया सारा energy का discussion. Now we are going to talk about a very important aspect regarding waves. Which is called superposition. And this is, in one sense, probably the most important thing about waves is that they show the property of superposition. और इससे काफ़ी सारे फिनोमेना प्रोड्यूस होते हैं इन नेचर. इनफैक्ट हमारा जो चैप्टर आफ्टर दिस के बाद जो रहेगा, वेव ऑप्टिक्स, इज एंटायरली अबाउट द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स. सो वहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सुपरपोजिशन वेरियस टाइप में. पर जो मेन आइडिया है सुपरपोजिशन का वो ये है that if you, let's say, if you take a two-dimensional example, that if you have the surface of water and you're looking at the top view, right, and this is where you drop a stone, let's say, and it produces its ripples, and as a result of the ripples, some leaf here goes up and down in z and has a certain amplitude of motion, right? So maybe as a result of this wave, which we will call, let's say, z1, ये मैं 2-dimensional वेव ले रहा हूँ, तुम लोग समझ रहे हो? z में डिस्प्लेसमेंट कराएगा ये और xy में प्रोपोगेट करता है. So if this wave produces at this place, let's say the leaf is located at x comma y, some motion z1 x y t, and independently, if you had done a different experiment where the leaf was still located at the same xy and had a different stone being dropped here, and it would have produced maybe of a different size or from a different height or whatever, and it would have produced a different set of ripples, and that would have caused the leaf to do this motion. राइट कि अगर ये स्टोन यहाँ ड्रॉप करने के कारण इस जगह पे ये लीफ 6 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सेपरेटली ये स्टोन ड्रॉप करने से ये लीफ 4 सेंटीमीटर ऊपर जाता है. तो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is that if you add these two situations, or basically what it means is that if both of these occur at the same time, yani in the same situation you drop both the stones simultaneously, this one falls here and produces its set of ripples, and this one falls here and produces its set of ripples, then the leaf, which is again located at x comma y, now undergoes a motion which is a simple algebraic sum of the two motions.
कि अगर एक स्टोन के इंडिपेंडेंटली गिरने से वो 6 सेंटीमीटर ऊपर जाता था, दूसरे के गिरने से 4 सेंटीमीटर ऊपर जाता था, तो दोनों के होने से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो वहां पे एड अप हो जाएंगे, सो दैट कि अब वो नेट 10 सेंटीमीटर ऊपर जाता हो, राइट। अब हम 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है कि इफ a wave produces displacement y1 xt at a place x at time t, and wave and another wave produces displacement y2 xt at same x at same t, then both waves together produce a displacement yxt, which is the simple sum of y1 xt and y2 xt. Make sense? Which graphically हम इसको देखेंगे पहले। एक तो हमें इंट्यूटिवली आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज सुपरपोजिशन रियली मीन। So what it means is that if you send let's say a pulse on a string of this shape, and then you send a pulse on the string of this shape towards each other, then as they meet over time, you will see something like this, then you will see something like this, then you will again see something like this, and then you will see something like this. But in this case now, they're actually, and also when they are making this kind of a shape, it is not that the presence of one of the waves has caused the other wave to be distorted or changed or modified in any manner. In a purely mathematical sense, both the pulses are still there. But the shape of the string is determined not by the individual waves, but by the net shape, right? So the two pulses come together, and when they kind of are in the same place at the same time, in that region where there is overlap, the total displacement is the algebraic sum of the two. And so you find that the string is higher here than either of the two because that has added up. So just like दो ग्राफ्स को ऐड करते साइन और कॉस को, तो वैल्यूज ऐड कर देते वैसे। हाँ, वही करना है, बिल्कुल लिटरली वैल्यूज ऐड करनी है, लेकिन ये उसको ग्राफिकली मैं दिखा रहा हूँ ऐड करने को, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोनों बिल्कुल ओवरलैप हो गए हैं एक दूसरे पे, तो सिंपली ट्वाइस एज मच ऑफ अ पल्स बन गया है। बट देन दे विल कम आउट ऑन द अदर साइड, एंड देन यू विल हैव द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन अगेन, but with the pulses going the other way, and then they'll go. So in a sense, what superposition means is that while they are in the same place at the same time, you will get some complicated or some combination displacement, but that does not mean that the individual waves have been destroyed or modified or affected in any way. It's a dual kind of a meaning of superposition. They do merge and produce some net effect, but their individual identities are not destroyed. They are still preserved, which you can see that they come out completely identical. They, in a sense, they go through each other. Waves actually go through each other, which is not something that you should be having some kind of a philosophical issue with, कि कैसे उसके अंदर से चला गया वो, because remember, waves are not actually things. They are not actually objects. They are simply mathematical patterns. The thing that is a physical object here is the pieces on the string, and in no situation are the pieces of the string doing anything unphysical, right? ऐसा कुछ कोई ऐसा नहीं कि string दो जगह दिख रहा है मेरे को, वैसा नहीं होगा। कोई physical material कोई weird चीज नहीं करेगा, लेकिन जो wave है वो mathematical form है केवल, और mathematical form दूसरे mathematical form में घुस सकता है,
और उसके थ्रू पास होके दूसरी साइड से निकल सकता है, completely maintaining its identity, right? You know that waves superpose. For obvious reasons, you know that waves superpose and do not destroy each other, because sound is a wave, and you can be sitting in a room and somebody can be talking to you while at the same time some music is playing and you're also hearing the sound of birds or whatever outside, or traffic, and none of those things are distorted. I mean, that it's a different issue that you might have trouble following any one of them, कि भाई वो जो गाने में जो गा रहा है वो मैं सुनना चाह रहा हूँ वर्ड्स उसके, तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ द ट्रैफिक, which is my own perception problem. The sound itself is not getting distorted. They are all together in the same place. तुम्हारे कान के बाजू में वो साउंड भी है जो ट्रैफिक का है, उसका भी साउंड वेव चल रहा है, म्यूजिक का भी साउंड वेव चल रहा है, चिड़िया का भी साउंड वेव चल रहा है, लेकिन they are not, none of those sounds get distorted by the fact that they are also overlapping with other sound waves. They don't. I mean, you pick them individually from each other. They might sound like a noise together, which is the net effect, and you might have trouble picking the noise, but the underlying wave is completely intact and it is exactly what it, and they don't get destroyed when they meet each other because they might come out on the other side. It is possible that there is a source of sound that is generating sound in this direction and a source of sound is generating sound in this direction, and in the place where they meet you might have a difficult time picking one of them out, but then as they go past each other, let's say, there would be a clear sound of this and would be a clear sound of that. It's the same with light. We are basically bathed in electromagnetic waves, right? तुम्हारा phone है तो constantly उसको microwave radiation मिल रही है, वो send कर रहा है. You're sitting in all of that sort of pool of microwave radiation. Plus there is radio waves constantly. अभी रेडियो रखोगे टेबल पे चलाओगे तो गाना सुनेगा, मतलब तुम्हारे विसिनिटी में रेडियो वेव्स भी चल रहे हैं. Visible light है, that's visible light is also infrared भी है, ultraviolet भी हो सकता है, maybe अभी तो नहीं होगा. So all of these are there and they are not modified by the presence of, it's not like visible light from the tube light is getting distorted by the presence of the radio waves in the room. कि अचानक से अंधेरा हो गया क्योंकि radio waves भी हैं. The waves are not destroyed, they are not affected, nothing changes, except if they are in some place at the same time, they superpose, which only if you make a device to detect the wave, a detection mechanism that works on something physical, then it will only pick up the net effect because the actual physical thing responds to the net effect. Like over here, you are simply using your eyes to see the net effect, and the string will respond to the net of the two waves. And so when you look at the string, it will be difficult because ये मैंने तो help करने के लिए तुम्हें बनाया है pink color में, but otherwise you might be like कि कुछ तो कचरा हो गया है, waves destroy हो गए. But if you wait, they are not destroyed, right? So the net effect can be complicated, but the two waves are still there exactly as they used to be, and then they will come out, right? इसका तुम ये version भी देख सकते हो, just for more of visual. कि let's say one of the pulses came like this, and the other pulse came like this. They are completely identical, going in opposite direction, but one is also now inverted with respect to the other. नहीं पार वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी बाद में आएगा, ठीक है? वी लुक एट इट व्हेन वी गेट देयर, एंड दैट हैज टू डू विद साइन वेव्स, पीरियोडिक वेव्स. अभी केवल सुपरपोजिशन की बात हो रही है. हाँ देख लो. ठीक है? So now when they get close together, you will have something like this when they're just about to meet each other. And when they do meet each other, in fact, on this string, you'll find a state that looks like this also. And then you'll find the mirror image of this. And then you'll find that they have gone through each other. Make sense? What has happened here is the string. What has happened here is that both pulses are still there, but since they are completely vertical mirror images of each other, and since they happen to be exactly at the same place at the same time, the net displacement that they are producing everywhere is zero, because at any place, if this is the y1 displacement, this is the y2 displacement, and they are exactly equal and opposite of each other.
right? So the net string remains at zero displacement, and so for a brief moment you will suddenly feel, if somebody took a video of this waves arriving and then suddenly took a photo of this and showed somebody only this photo, then it would not be possible for that person to tell कि इस पे कोई wave कभी था भी या नहीं. I mean, for that instant the string looks like there is no wave on it, but there is actually a wave on it. This is different from a string being completely straight, and the wave will soon emerge. They have gone into each other and come out on the opposite side without changing their shape. ठीक है, एक बात ये भी है, caveat, in reality waves are affected in shape as a result of superposing with other waves, because of the fact that energy is lost, dissipation is there, no medium is perfect. लेकिन हमारे केस में हम idealized cases पढ़ रहे हैं. The string is ideal, it doesn't heat up due to the deformations produced by the wave, and so no energy is lost, so there is no sort of loss of, even in a real string, if you forget superposition also, just start a single pulse and allow it to travel. On a realistic string, it will slowly become smaller over time, and then it will be basically indistinguishable because energy is lost. Because you saw in properties of matter that deforming a medium produces heat in it. Some energy is always produced as heat. And so as the wave propagates through it, the energy in the wave, the energy that it is carrying, which we have discussed before, kinetic and potential का sum जो वो carry करके जा रहा है, वो पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है heat की तरह. String पीछे जो है गर्म होता हुआ जा रहा होगा. So therefore it will sort of die out or fade out eventually. That is the destiny of all real waves. But हम dissipation of waves नहीं discuss करेंगे. तो हमारे point of view से any wave started on a string will perpetually move on it. चिन्मय, हाँ करेक्ट बात है. अगर ये लाइट वेव्स होते तो फॉर दिस इंटरवल it would actually be dark. It is in principle possible to send two light waves at each other, and then there be a moment when it is completely dark in that place. It is in principle possible, of course very difficult to achieve. Light is very fast, and to create two waves which are exact, but it is possible. I mean, mathematically it is true. With sound also, if you produce two sound waves which are exactly mirror images of each other in a sense, sound ke case mein, of course, it is not up or down. Sound is a longitudinal wave, so it's left or right. But if two waves are approaching each other, and as they merge, they cancel out the effects of the other wave at every place, then for that one instant there is no wave anywhere. I mean, the medium looks like there is no sound in it. So that's true, but practically वो हो नहीं पाता है. प्रैक्टिकली वो इसलिए भी नहीं हो पाता साउंड के केस में क्योंकि हमारे दो कान हैं and they are not located in one place. So even if it might happen by chance that two sound waves cancel each other out perfectly at one ear, the probability that they would also be simultaneously doing it at the other ear is basically negligible. It is nearly impossible for two places, for this to occur at two places at the same time. ठीक है, but in any case, I hope you all understand what this means. ठीक है. And so let me write this here. Superposition does not affect either wave individually. They are preserved. I'm using the word medium here. Only the medium responds to the superposition, whatever that medium might be. Sound के case में gas, wave on a string के case में string. The medium responds to the superposition. So the string is basically showing you the superposition because the string cannot be in two places at the same time. ऐसा नहीं हो सकता कि string इधर भी हो, split तो नहीं हो जाएगा वो, और इधर भी हो, तो वो दोनों waves को नहीं individually track करेगा, वो net effect पे react कर रहा है, लेकिन दोनों waves mathematically speaking are still there. ठीक है, clear? तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं क्विकली, just for you guys to have some practice in this kind of thing, is that कि let's say I send a triangle pulse towards a square pulse.
ठीक है, और स्क्वायर का जो बेस है और हाइट है वो सेम है एज ट्राइंगल का बेस एंड हाइट। तो ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में तुम्हें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ड्राइंग बनाना है। एंड draw the shape of the string at the moment when the pulses are half overlapped and be fully overlapped. So this is only for you to make a drawing. There's nothing to mathematically solve, but just to check if you would know how to do something like this. नहीं प्रणव, that's not correct. हाँ मिराज, वो करेक्ट है।
रिदम भी करेक्ट है, ए भी हो सकता है करेक्ट है, आई डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट वियर्ड। हाँ चिन्मय, फुल ओवरलैप में करेक्ट है। फुल ओवरलैप तो इजी है, आई गेस तुम सब लोग बता ही सकते हो, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फॉलो विद द लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, राइट? इवन इन अ ड्राइंग इट इज नॉट अबाउट ड्राइंग इट बाय इंट्यूशन, there is a mathematical prescription for how to do it. You're supposed to simply add the functions to make the new function. It is simply an addition, right? And so what you do is you first make them, I'm going to make an orange the mathematical pulses. So the triangle is here, and since there is a half overlap, the square is also here. This is not the actual string, this is just the mathematical waves, so they can be in the same place at the same time, right? Correct? आधा ओवरलैप का तो यही मतलब है, आधा आधा बेस उनका ओवरलैप हो गया। तो अब इसके 3 रीजन कंसिडर करो। एक रीजन जो है इस लाइन के इस तरफ, इधर स्क्वायर अभी पहुंचा नहीं है, तो स्क्वायर के कारण इधर का स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी अगर ये y2 है, ये y1 है, तो देन y2 in this region is 0, therefore the net shape is given only by y1, y1 plus y2 is simply y1 here, so the net shape is simply the triangle। इधर तो कोई भी नहीं है, तो स्ट्रिंग सीधा है। सिमिलरली इस लाइन के राइट में देखोगे तो ट्राइंगल नहीं पहुंचा है उधर अभी, that side there is the y1 plus y2 is simply y2 because the triangle is producing 0 displacement there, so वो भी बना देते हैं। ब्लैक में मैं नेट शेप बना रहा हूँ जो हमें दिखेगा स्क्रीन पे। जो बीच का रीजन है उसमें दोनों के कारण नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट है, द ट्राइंगल इज देयर कॉजिंग सम डिस्प्लेसमेंट and the square is also there causing some displacement, but if you look at what the square is doing, the square is producing a constant displacement everywhere, so y1 plus y2 में y2 is a constant equals to a। अब कोई फंक्शन y1 है और उसमें तुम एक कांस्टेंट ऐड करोगे तो क्या होगा उस फंक्शन के साथ? ऊपर शिफ्ट होगा। ऊपर शिफ्ट हो जाएगा by the same units, so the triangle का part will simply get lifted up by the amount of the square, so then you take it here and connect it to make the net shape. The thing in black is the net shape of the string at this moment. सर एक्चुअली लेफ्ट वाले डायग्राम में डाउट था हाँ, सर, जब भी वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो सर लाइक एनर्जी कंजर्वेशन से बाद में कॉन्स्टेंटली जीरो नहीं होना चाहिए पूरे को? नहीं यहाँ पे एनर्जी जीरो नहीं है, मैं भी आता हूँ इस पे। क्योंकि ऐसा फील आ रहा है कि लाइक दो ठोका एक दूसरे को और फिर दे बिकेम स्टेबल ऐसा। नहीं नहीं वैसा नहीं, क्योंकि वो चीज नहीं है, सो ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो ठोक रहा है एक दूसरे को, वो हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि कोलाइड किया, टकराया, ठोका, बट नथिंग इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। दो मैक्सिकन वेव अगर चल रहे हैं स्टेडियम में तो वो ठोक नहीं देंगे एक दूसरे को, राइट? यस। वेव का कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं जो इस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता हो, सो दे आर नॉट एक्चुअली कोलाइडिंग और हिटिंग। वी से वी यूज दोस वर्ड्स बट दे आर नॉट, दे आर ओनली अप्रॉक्सीमेट। इट्स नॉट रियली दैट दे आर कोलाइडिंग और हिटिंग। मैक्सिकन वेव किसी को हिट नहीं करता है, मैक्सिकन वेव जाएगा और मेरे को नहीं करना है, मैं अपना पॉपकॉर्न खाता रहूंगा, तो वो मेरे को उड़ा नहीं देगा वहां से। People will just stand up around me and sit down and I'll just continue sitting in my seat, right? So the wave doesn't have that thing going, so two waves colliding doesn't mean anything, right? There's nothing there to hit as such. गॉट इट। इसका मैं बोलता हूँ, वैसे एनर्जी का इसमें एक पॉइंट है। Prerit, in orange I made both the pulses when they are half overlapped, right? So the triangle is there, the square is here, and then I use the definition of superposition, which is that you have to add the result, add the displacements caused by the two. So इस रीजन में जब तुम देखोगे तो इधर केवल ट्राइंगल पल्स है, इधर स्क्वायर भी पहुंचा नहीं है, तो y1 plus y2 is simply y1 ट्राइंगल, सो ट्राइंगल बना दिया। इस रीजन में तुम देखोगे तो ट्राइंगल नहीं पहुंचा है अभी तक, तो केवल y1 plus y2 is simply y2 स्क्वायर, तो स्क्वायर बना दिया। बीच का रीजन में ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों साइमल्टेनियसली हैं, तो उधर के रीजन में ऐड करना पड़ेगा उनको। अब ट्राइंगल के कारण ये हो रहा है, ये स्लोप वाला डिस्प्लेसमेंट, स्क्वायर के कारण कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इट इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट a everywhere. So if you add that a to whatever value is here, it will simply lift that value up by a. So this entire line will get lifted up by a units. And then I have connected the string, right? मैथ में जैसे फंक्शंस ऐड करते हैं,
अगर फंक्शन में कांस्टेंट डालोगे तो फंक्शन उस कांस्टेंट अमाउंट से ऊपर चला जाएगा, बस वही लॉजिक है। और जहां तक हाफ ओवरलैप का सवाल है, से हाफ था ना भी फुल। फुल का जहां तक क्वेश्चन है तो फुल तो बहुत इजी है कि दोनों लोग जो हैं एक जगह पे पहुंच गए, छोटा बना रहा हूं मैं, द ट्राइंगल इज देयर, द स्क्वायर इज आल्सो देयर, तो नेट शेप इजी है, द होल ट्राइंगल इज लिफ्टेड बाय द अमाउंट ऑफ द स्क्वायर एंड दैट्स इट, ऐसा घर जैसा बन जाएगा। एंड इफ यू प्ले दिस होल प्रोसेस इन टाइम यू विल फाइंड कि जब ये मीट करेंगे ऐसे, तुम इमेजिन करो इसको सिमुलेट करना, तो जब ये लोग मीट करेंगे तो जैसे जैसे मीटअप होता जाएगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा किंक निकलता जाएगा उधर, जितना ट्राइंगल इसमें चला गया होगा उतना किंक सा ऊपर निकलेगा, which will eventually become like this when half overlap is there, and then they will continue moving, and so this will basically symmetrify into a house shape, then they will come out on the other side. जब दूसरी साइड निकल जाएगा ट्राइंगल आधा, तो ऐसा ही शेप का मिरर इमेज इधर से बन जाएगा, और फिर जो है ट्राइंगल इधर चला जाएगा, स्क्वायर इधर चला जाएगा। So as waves go through each other, they will produce some net effect and then they will go past each other. मैं लिंक डाल दूंगा YouTube के कुछ वीडियोस के on the group, so you watch them later and you'll see that waves, the way waves superpose and the way the string shapes when they are together and how they come out on the other side. सर वो जो लीफ वाला आपने एग्जांपल दिया था ना स्टोन वाला, उसमें एक छोटा डाउट आ रहा है कि लाइक द लीफ डज नॉट मूव हॉरिजॉन्टली बिकॉज ऑफ द वेव्स। No, it does not. I mean, in reality, it might move a little bit because of, in actual fact, the waves do produce some horizontal displacement also, but it's local. They don't carry the leaf all the way. They cause it to move side by side a little bit. But that's something we are not. उसे काफी जगह ऐसा दिखा दिया कि लाइक लाइफ बोट्स विदाउट सेल आल्सो उसे वेव से कोई सुबह आइलैंड पे पहुंच गया ऐसा। नहीं तो वो करंट होते हैं ओशन में जनरली, water is not overall at rest, but if it was, करंट भी एक तरह से वेव ही हो गया ना। नहीं करंट वेव नहीं है, करंट और वेव में डिफरेंस है। करंट इज लाइक द क्राउड कमिंग आउट ऑफ द स्टेडियम, exiting the stadium. That's a bulk motion of the material in one direction. A wave is people getting up and sitting down and only a pattern moving through the stadium. So पानी में भी जब वेव्स चलते हैं तो पानी जब ऐसे ऊपर नीचे करेगा ऑल्टरनेटली तो वो चीज का प्रोपगेशन को वेव कहते हैं, लेकिन पानी खुद ऐसा जाएगा तो उसको करंट कहते हैं। समझ गए। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस मोशन ऑफ बल्क मैटर अगर हो रहा है तो वो वेव नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो पीछे एग्जांपल बना था बाय द वे, जिसमें कि एक पल्स नीचे से था और एक पल्स ऊपर से था, इसमें अगर तुम स्ट्रिंग को इस इंस्टेंट पे देखते तो यू वुड हैव सेड कि इट हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड प्रायर टू दिस कि एनी डिफॉर्मेशन हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस द पीसेस have kinetic energy because they are moving up and down. But then at that moment of superposition, the string looks like this, and suddenly it seems like the string has no energy. Or is it? Is the energy lost? It is not lost clearly because these pulses will soon re-emerge. So the energy is still somewhere on the string. String छोड़ा तो नहीं energy ने, energy string पर ही है, लेकिन इस फॉर्म में वो किधर है फिर? अरे ना पी कैसे हो सकता है? पी तो डिफॉर्मेशन के कारण होता है, ये स्ट्रिंग तो अनडिफॉर्म्ड है कंप्लीटली। नहीं श्रेया, व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन? एनर्जी, यू हैव टू टेल मी व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर। Does this string have any potential energy? नहीं पारते, इलास्टिक कैसे हो सकता है? Guys, this doesn't have any elastic potential energy because it is an undeformed string. How could it have elastic potential energy? It has only kinetic energy. Because this is what it looks like. It does not mean that pieces of it are not currently moving. They are moving, but they are all crossing their mean position right now. Like if you imagine थोड़ा detail में इसको, कि इस पे मैं अगर इसको हम अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो यहाँ ये हो रहा है कि स्ट्रिंग तो तुम्हारा सीधा है, लेकिन उस पर मैथमेटिकल शेप ये है, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो उसके कारण स्ट्रिंग का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, जिसके कारण स्ट्रिंग अनडिफॉर्म्ड है।
तो इसलिए उसमें कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये बात करेक्ट है। लेकिन यू नो कि अगर ये वेव मान लो इस तरफ जा रही है तो इसके कारण जो इधर के पार्टिकल्स हैं उनका मोशन किस तरफ हो रहा होगा अभी? लेफ्ट साइड। नहीं, लेफ्ट राइट कैसे होगा? पार्टिकल्स डू नॉट मूव लाइट लेफ्ट एंड राइट। सॉरी, अप डाउन। हाँ, तो विच इज इट? इस केस में तो दिल बी एट रेस्ट। नो, only due to the pulse which is above that pulse डाउन। these particles are moving up, these guys, right? हाँ सर। तो इस पल्स के कारण जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग पे वो स्लोप के प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ स्लोप ज़्यादा है तो ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे 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 और ऐसे। डू यू ऑल एग्री? हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सर। लेकिन नीचे वाला पल्स उधर जा रहा है और वो नीचे है, तो उसके कारण जो यहाँ पे देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट सुपरपोज होते हैं, इफ इट इज ट्रू दैट द नेट शेप is given by the sum of the two shapes, then इसका डेरिवेटिव भी ट्रू है, that the net velocity is given as simply the sum of the two velocities produced by the two waves there, not the wave speed. Please don't confuse, तुम लोग थोड़ा सा compartmentalize करना सीखो। When I say velocity, I mean particle speed which is up and down. wave का speed का कोई discussion नहीं हो रहा है। wave का speed नहीं सुपरपोज हो रही है, particles का motion सुपरपोज हो रहा है। तो therefore, first of all, just simply tell me this: due to this pulse going this way, these people have their velocity in which direction? Also up. Also up. डाउन। नहीं, up. तो अब क्योंकि वो भी यहाँ पर अप वेलोसिटी कॉज कर रहा है और ये भी यहाँ पे अप वेलोसिटी कॉज कर रहा है, तो वो एड अप हो जाएंगे। हाँ। तो समझ गए? तो डबल द स्पीड हो गया यहाँ पर एक्चुअली। सो देन वेव क्यों नहीं बन रहा? बनेगा ना, ये तो फोटो ले लिया तुमने अभी, थोड़ा देर दे दो इसको, निकल आएगा वो। बन तो रहा है, दिख ही रहा है, बनेगा यहाँ से। हाँ सर। और ये वाले रीजन में उल्टा हो रहा है कि ये नेट लोग डाउन जो है बनेगा। ऐड करके डबल द वेलोसिटी कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड इनफैक्ट इफ यू नाउ अलाउ द वेलोसिटीज टू शो यू व्हाट हैपेंस लेटर, यू कैन सी दैट अ पल्स ऑन दिस साइड विल इमर्ज एंड अ पल्स ऑन दिस साइड विल इमर्ज, व्हिच इज व्हाट हैपेंस। पर तुमने फोटो ले लिया ना उसका, फोटो में तुम किसी को भी बोल दो रेस्ट पर है, वो थोड़ी होता है। फोटो में तो सब रेस्ट पर होते हैं, राइट? बट दैट डज नॉट मीन दे आर एक्चुअली एट रेस्ट, दे आर करंटली मूविंग एंड क्वाइट फास्ट इन फैक्ट, but they just happen to all be crossing their mean position at the same time, and that is when this snapshot was taken. And so it creates an illusion that there is no energy when there is a lot of kinetic energy. In fact, it is more kinetic energy, because जब इसकी तुम kinetic energy consider करोगे तो इसके कारण जो V प्रोड्यूस होते थे उनसे कोई certain half mv square प्रोड्यूस होता होगा, इसके कारण कुछ V प्रोड्यूस होते थे तो उससे certain half mv square प्रोड्यूस होता होगा। Are you following what I'm saying? पार्टिकल्स की जो भी स्पीड्स प्रोड्यूस होते होंगे, लेकिन सुपर पोजिशन से क्या हुआ है कि v प्लस वी 2v हो गया है। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? वेलोसिटीज डबल हो गए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है। काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ओनली ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी, बट स्पीड प्लस स्पीड से निकलने वाला काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी. So in this configuration, all of the energy is in the form of kinetic. You have more kinetic than you had in this configuration, and you have no potential. The potential has also been converted to kinetic. They are all moving, but ये pulses हटा दो अगर mathematically, तो अभी क्या है कि सब mean position cross कर रहे हैं, लेकिन you still have to give them some time, one more instant before you see the shapes emerge. ऐसा ही है. It is like particle SHM कर रहा है और तुमने उसकी mean position पे फोटो ले ली और फिर तुम बोलो कि अरे वो तो रेस्ट पर है, राइट? वैसा नहीं है. They are all moving, and they're all moving quite fast, and that is what the energy is in the form of currently. So it's kinetic plus potential, and they're all kinetic, and then kinetic plus potential again. ठीक है? हाँ. सर वो वेलोसिटी वाला नहीं समझा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों नहीं है? वो क्यों जीरो होगा?
क्यों लग रहा है कि 0 होना चाहिए? क्या देख के लग रहा है? ये लाइन देख के है ना, कैसे रेस्ट पर है? फोटो में रेस्ट पर है ना, फोटो में तो वैसे भी रेस्ट पे दिखता है। पीछे भी जा रहा है, नेट तू 0 रेस्ट पे क्यों है? रेस्ट पे नहीं है ना, तू रेस्ट पे क्यों बोल रहा है? ये लाइन देख के ना। नहीं सर, वो वेलोसिटी ऊपर और नीचे दोनों बाजू जा रहा है। हाँ, तो ये लोग मूव कर रहे हैं ना, फिर इनका वेलोसिटी है। कहाँ रेस्ट पर है ये लोग? ये लोग भी रेस्ट पर नहीं है, कोई भी रेस्ट पर नहीं है इस रीजन में। लोग खड़े हैं लाइन बना के, एंड इट जस्ट सो हैपेंस कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहां से चलते हुए आ रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहां से चलते हुए आ रहे थे। ये नीचे की तरफ आ रहे थे तेजी से, ये ऊपर की तरफ आ रहे थे तेजी से, और इन ऐसा हुआ कि एक इंस्टेंट पे ये सारे लोग इस लाइन में आ गए और तुमने उनका फोटो ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो रुक गए, दे आर स्टिल मूविंग, you just happen to take a photo of at an instant when everybody was happened to fall in a line, and then by looking at the line you are seeing nobody is moving just because it looks like a line, right? That is what is happening here. सर, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा क्या वहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी कैसे मैक्सिमम हो सकता है? 0 है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्ट्रिंग सीधा है एकदम। ओके ओके, समझा। पोटेंशियल एनर्जी वेव ऑन अ स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी, तुम लोग कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा लॉजिकली रिलेट करो विद व्हाट यू आर सीइंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। आपने पहले वो ट्रैवलिंग वेव कराया था, उसमें ऐसा नहीं था। कैसा नहीं था उसमें? which part is it that you find is new? It's the same thing. पोटेंशियल एनर्जी का जब हमने डिस्कशन किया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो। चलो, क्या था फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए? जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पे जनरल, एनर्जी कंजर्व होता है नहीं अभी, नहीं उसमें कुछ अलग नहीं है इसमें। हाँ एनर्जी कंजर्व्ड है। इफ यू रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव किया था, ये याद है? ये आया था। हाँ तो लगा लो उसको यहाँ पर, 0 आ जाएगा। हर जगह ही स्लोप 0 है। सर, जब वो स्लोप नहीं है तो समझा डिफॉर्मेशन। कि इसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगा ना, वो कंजर्व हो रहा है, अलग है ना। कंजर्व हो रहा है। यहाँ पे जो है सम ऑफ के प्लस यू है, यहाँ पे ओनली यू के है, यहाँ पे फिर सम ऑफ के प्लस यू है। तो के बढ़ गया है ना इस कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो है डबल द स्पीड हो गए हैं नॉर्मल टाइप के। दोनों का वेव्स का सुपरपोजिशन से पार्टिकल्स का स्पीड जो ऑर्डिनरली होता था एक पल्स के कारण, वो दूसरा भी उधर है और उसका ये वाला स्लोप वहां आ रहा है, और वो उनको उतना ही रेट से, क्योंकि वो इसका मिरर इमेज है, तो वो वही वेलोसिटी वेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसी जगह पे जो ये कर रहा है और इन द सेम डायरेक्शन, and therefore they add up to give you twice as much the velocity vectors as either of them individually, and twice as much the speed means 4 times as much the kinetic energy. यहाँ पे तो 2 times ही kinetic energy, अगर इसका k है तो इसका k है, तो 2 k टोटल kinetic energy और कुछ potential energy। लेकिन यहाँ पे तो 4 k energy है ना kinetic, क्योंकि स्पीड डबल हो चुकी है, तो सारी u भी k बन गई है। सर, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड है, वो अलग है ना, मतलब ट्रैवलिंग वेव से। हाँ वो बात नहीं है, एक पार्टिकल का था वो डिस्कशन। लोकली एक पार्टिकल की क्या एनर्जी कंजर्व्ड है एज वेव गोज बाय? नो, इट इज नॉट कंजर्व्ड इवन हियर, बट इज द टोटल एनर्जी ऑन द स्ट्रिंग कंजर्व्ड? यस इट इज। सर, मतलब यहाँ पे एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में ट्रांसफर होता है, इसीलिए कंजर्व नहीं है ना। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पार्टिकल स्पीड ऑल्सो सुपरपोजेस, यहाँ पे लिखा हुआ है चीज। ये सबको डिस्कशन क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, दिस वाज रिलेटेड टू दैट प्रीवियस ड्राइंग एंड दैट पर्टिकुलर वन केस, राइट? ऑलराइट, तो ये होता है वेव सुपरपोजिशन। एंड अब हम इसका भी यूज करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच यू कैन बी आस्क्ड फॉर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, राइट? एंड देयर आर अ फ्यू वेज सॉरी, जिस तरीके से तुमसे पूछा जा सकता है सुपरपोजिशन रिलेटेड प्रॉब्लम। एक तो ये ग्राफिकल हो गया कि भाई ड्राइंग बना हुआ है और अब तुम बता दो कि सुपरपोजिशन कैसा दिखेगा, राइट? सो यू हैव टू लुक एट द ड्राइंग एंड इंटरप्रेट द ड्राइंग एंड देन sort of make a drawing also,
right? But sometimes you are given a superposition, you are asked to do a superposition in a mathematical form, right? So instead of giving you shapes of artificial waves like triangles and squares, you are given the equation of more realistic sine waves. So ये एक वर्जन हो सकता है सुपरपोजिशन करने का कि एक वेव है लेट्स से 5 sine kx minus omega t. This is going to the right or left? Right. Right. और दूसरा वेव है -5 cos kx minus omega t minus kx minus 150 degrees. Is this going to the right or left? Right. Right. Also right. अब इनका सुपरपोजिशन करना है, ठीक है? तो there are two ways of doing this kind of thing. One is if you can manage to write both of them as some sine or some cosine and you can take the factor out, then you can use your knowledge of trigonometric identities कि भाई sin a plus sin b क्या होता है, क्योंकि एजेंडा क्या होता है, सिंगुलर साइन फंक्शन बनाना है. यानी जब इनका सुपरपोजिशन किया जाएगा which is nothing but the sum, then that on the right hand side is also nothing but the sum. And the idea is you don't simply write it. You can always say कि इनका superposition is this plus this. लिख दो, वो भी गलत आंसर नहीं है. Nobody can say कि that is incorrect because that is correct. But usually तुम्हें multiple choice में वो options नहीं दिए जाएंगे कि simply इन दोनों का sum लिखा हुआ है ऐसे करके, right? तो वो singular sin या cosine बनाना होता है ताकि हम उसको देख के फिर कह सकें कि वो कैसा wave दिखता है, उसका amplitude क्या है, उसका phase क्या है and so on. तो either you are able to spot the trigonometric identity कि भाई sin a plus sin b से ये बन जाएगा whatever, or you use the other method where you treat these as phasors. phasor याद है तुम लोगों को SHM का, मतलब बेसिकली वेक्टर की तरह ट्रीट करना है. तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो एटलीस्ट ये कर लो कि ये वाला पार्ट सेम कर दो, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी के रिलेटिव मिरर इमेज होता है, राइट? तो अगर तुम इसमें से माइनस कॉमन ले लो पहले, तो ये हो जाएगा 5 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है. तो अगर पूरे में से मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया तो भी कॉस खा जाएगा उसको. के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 150 डिग्रीज हो गया. अब एटलीस्ट ये पार्ट इनका सेम हो गया है, ठीक है? अब बेटर ये रहेगा कि तुम दोनों को ही साइन बना दो ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग, या दोनों को ही कॉस बना दो ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग. तो वो कैसे कर सकते हो? कॉस को तुम 90 माइनस वो लिख सकते हो, राइट? तो लिख सकते हो तुम 5 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5 साइन 90. आई गेस वहीं पे मैंने माइनस कर लिया होता तो ठीक रहता, 90 माइनस, राइट? बट ठीक है, इट्स ओके. 90 माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस 150 ऐसे लिख सकते हैं इसको. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 साइन, एक और माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया के एक्स माइनस ओमेगा टी, और 90 माइनस 150 जो है 60 बना था विद माइनस साइन, तो प्लस 60 बन गया माइनस कॉमन लेने से, ठीक है? तो एटलीस्ट जो है क्या हुआ है कि इतना पार्ट जो है बिल्कुल सेम हो चुका है. मतलब 5 भी है उसमें, लेकिन 5 सेम होना जरूरी नहीं है, ये पार्ट सेम हो चुका है, ठीक है? अब या तो तुम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो कि 5 कॉमन लेके साइन ए प्लस साइन बी लगा दो. तो जब साइन ए प्लस साइन बी लगा दोगे तो साइन ए प्लस बी बाई 2 में तो ये दोनों आ जाएंगे, और साइन ए माइनस बी बाई 2 में कांस्टेंट रह जाएगा केवल. दो ऑप्शन है यहाँ पर, दोनों ऑप्शन में बता देता हूँ. वाया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी you will basically say 5 कॉमन लेके साइन ए प्लस साइन बी विच इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्रीज, करेक्ट?
a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो, एंड cos a माइनस बी बाई 2 होता है ना, तो cos 30 डिग्रीज हो जाएगा, विच विल बेसिकली मेक इट cos 30 कितना होता है √3/2, तो 5√3 sin kx minus omega t plus 30 degrees. So our superposition of these two waves, when these two waves meet each other, they produce a wave whose amplitude, and assume किया जाता है जब हम sin form में लिख रहे हैं कि वो infinitely long wave है, right? तो वो पूरे region में है infinite sine wave, ये वाला भी है, तो इनका superposition से पूरे region में एक wave बनेगा जिसका amplitude 5√3 है. They can also ask you for the resultant amplitude. Turns out it has a resultant amplitude of 5√3. It's a higher wave. And it's also out of phase by 30 degrees compared to y1. तुम्हें पता है कि फेज का मतलब होता है वेव कितना शिफ्टेड है एक्स वाई एक्स एक्सिस पे, तो अगर तुमने ये बना लिया साइन और ये बना लिया साइन और ये जितना भी फेज में शिफ्टेड है तुम देख रहे हो यहाँ पे आके कि 60 शिफ्टेड है इससे फेज में. बेसिकली व्हाट दिस मींस, what is being done is that you're first drawing this sine function, let's say like this, right? This being your origin. So this one passes through origin because let's say at x equal to 0, t equal to 0. And this one is ahead by 60 degrees. Ahead by 60 degrees होने का मतलब है कि 60 को तुम कर सकते हो, याद है, you remember? A phase difference also means a difference in which you can convert. 60 degrees is what? Pi by, you remember this result, right? Phase difference is 2 pi by lambda into the shift. And तुम्हारा phase difference है pi by 3. So that is 2 pi by lambda into delta x. So the shift between the two waves is lambda by 6. यानी एक वेव दूसरे से लैम्डा बाई 6 आगे शिफ्टेड है, तो शिफ्ट करके बना दो, ठीक है, और वो भी 5 एम्पलीट्यूड का है तो सेम एम्पलीट्यूड का बन जाएगा ऐसे करके, इस टाइप से. दिस इज योर सेकंड वन. एंड सो व्हेन यू सम दीज टू अप, ये वही चीज बन गया, आप ड्राइंग को ऐड कर दो, तो ये कह रहा है कि भाई इनका जो नेट आउटकम होएगा वो बनेगा जो 30 शिफ्टेड होगा इससे आगे और बड़ा होगा इनसे एम्पलीट्यूड में, तो इससे थोड़ा आगे शिफ्ट होगा और ऐसा दिखेगा इस टाइप से. Do you all follow what I'm saying here? That is the meaning of the superposition. ठीक है, बट इसको करने का ये तरीका नहीं है कि तुम ड्राइंग बना के सोचोगे, इसको करने का सिंपल तरीका है कि तुम इनको इनके फेजर से रिप्रेजेंट करो. कैसे? Which is a graphical method. Is that कि तुम जो तुम्हारा जीरो फेज वाला है, जो डिफॉल्ट है, मतलब जिसमें +0 है आगे, उसको तो तुम ले लो एक्स एक्सिस पे, 5 साइज का एरो बन गया. 5 साइज का क्यों बनेगा? क्योंकि एम्पलीट्यूड 5 है, ठीक है. और ये जो अंदर का पार्ट है ये क्योंकि स्पेस और टाइम में वेरिएशन दिखाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि फेजर घूमता रहता होगा. 5 साइज का फेजर घूमता रहता होगा, इसके घूमने से जो प्रिंट होता होगा वो ये वेव होता होगा जिसकी ये बात हो रही है. तो अब दूसरा वेव है तुम्हारा, पहले तुम उसको उस फॉर्म में लाओ ताकि वो उसके जैसा लिखा जा सके. जब वो उस फॉर्म में आ गया है तो तुम देख सकते हो कि उससे +60 है, 5 वो भी है और +60 है, तो कर दो उसको. ये हो गया तुम्हारा y2, ये है y1, ये है y2, और ये से 60 डिग्री फेज में आ गया, और ये 60 डिग्री हमेशा फेज में आगे रहेगा. अभी दोनों फेजेस साथ में घूमेंगे क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है. दोनों वेव्स जो तुम सुपरपोज कर रहे हो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये बात ध्यान रखो. अभी आई विल टेल यू सुपरपोजिशन का एक ट्री लॉजिकल जिसमें अलग अलग तरीके की सुपरपोजिशन देखेंगे, लेकिन अभी फॉर नाउ वी आर स्टडीइंग ओनली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स with same frequency. They might have different amplitudes, they might have different phase, but they will have same frequency. And if they have same frequency, they will automatically have same wavelength. Why? Speed is same. Speed is same. Why is speed same? Medium is same. Medium is same because if two waves are superposing, they are in the same place at the same time. And if they're in the same place, it is the same medium and speed is controlled by the medium. So speed same है, frequency जरूरी नहीं है same होना. ये हम अभी फिलहाल के लिए कंडीशन लगा रहे हैं कि केवल अभी वही केसेस लो जिनमें
फ्रीक्वेंसी सेम होता है। बाद में हम पढ़ेंगे साउंड में ऐसा केस जिसमें फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट होगा सुपरपोजिशन में, लेकिन फिलहाल के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है। तो therefore, and this is a superposition of waves going in the same direction, so you find that they produce a wave also going in the same direction naturally। अगर वो दोनों एक तरफ जा रहे हैं, केवल वो एक दूसरे से फेज में शिफ्टेड है, राइट? अदर देन दैट दे हैव नो डिफरेंस विद ईच अदर, they are exact copies of each other। 5 size का sine wave, one of them 60 shifted to the right and they're both going to the right, so naturally their superposition produces a slightly taller wave also going to the right, which is somewhere in between the two। that's why उसका phase 60 से कम है और 0 से ज्यादा है। मेक सेंस? फेजर पे ऐसे दिखता है वो कि पहला वाला का तुमने बना लिया 0 फेज वाले का, फिर दूसरे वाले को 60 आगे कर दिया। ये करना जरूरी है, इस फॉर्म में कुछ नहीं करोगे तुम ऐसे, क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है। तुम यहाँ से बोलो -150 कर दो, वो गलत जगह आ जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा है और कॉस है। सो साइन बनाओ उसको और माइनस माइनस हटाओ, तब तुम कर सकते हो। वैसे इससे भी कर सकते हो तुम। देखो रीजनिंग कैसे करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रीजनिंग है, यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू ऑल द वे टिल हियर। यू कैन से ओके सो इट्स अ कॉस, माइनस छोड़ दो और -150 छोड़ दो। कॉस साइन के रिलेटिव कहाँ होता है? अगर साइन तुमने यहां बनाया है तो कॉस किधर होएगा? अगर साइन ऐसा है तो कॉस किधर होगा उस वक्त? वर्टिकल। कॉस वर्टिकल होगा, क्योंकि कॉस साइन से 90 डिग्री शिफ्टेड है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तभी तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो सर्कल पे आता है हमेशा, राइट? तो कॉस इधर है, लेकिन -150 करना है उधर से। अब माइनस कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज, राइट? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस होता है एंगल में। तो यहां से -150 जाना है। 150 कितना होता है बेसिकली? यहां कहीं पहुंचेंगे नहीं, वेट। अच्छा, इसका अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स भी है, पहले उसको फ्लिप करना है। यू ऑल फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? तो उसको जब फ्लिप करोगे तो ये +150 हो जाएगा। अंदर जब फ्लिप कर दोगे माइनस कॉमन लेके तो ये +150 हो जाएगा, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तब तुम इसको कॉस बना लो। ये वाला पार्ट तो सेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो फेज का गेम छिपा हुआ है। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसमें हिडन फेज है, ये उसका मिरर इमेज है ना, तो इसको पहले कर लो करेक्ट फॉर फेज। तो इसको तो तुम माइनस साइन अगर अंदर ले लोगे तो +150 हो जाएगा। अब तुम बोलो कि वो कॉस है और कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो वो इधर होना चाहिए, और +150 तुम करने वाले हो, तो +150 तुम यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, और फिर लेकिन बाहर माइनस लगाए तो माइनस सिंपली उसको फेजर को फ्लिप मार देगा इधर। समझा तुम लोगों को मैंने जो बोला अभी यहाँ पे? ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकंड वेव का फेजर हो गया। And although, of course, you have to understand these are waves, these are dynamic phenomena. So the phasors are not simply vectors which are at rest. They are rotating vectors. They are both turning at omega. And as they turn at omega, they print their corresponding waves here. ऐसे इनको घुमाओगे तो यहाँ पे जो है, अगर ये दोनों इंक छोड़ रहे हैं, या रादर इनका जो वर्टिकल पे प्रोजेक्शन है वो इंक छोड़ रहा है, तो दो पार्टिकल्स बनेंगे जो थोड़ा आउट ऑफ फेज एसएचएम करते होंगे, और उनके इंक छोड़ने से एक स्लाइडिंग पेपर पे ये दोनों वेव्स प्रिंट होते होंगे, ये और ये। तो इनका सुपरपोजिशन कैसे मिलता है? इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ दीज टू। ये जो है तुम इनका ये निकाल लो और उसको भी एक फेजर की तरह ट्रीट कर लो। तो अब तीनों फेजर घूमेंगे। इसका जो टिप है वो y1 प्रिंट करेगा इन टाइम, इसका टिप y2 प्रिंट करेगा इन टाइम, और इसका टिप जो है y1 प्लस y2 का रिजल्टेंट प्रिंट करेगा इन टाइम। यू कैन सी दैट इट इज लॉन्गर, so it will end up printing a wave which is taller than either of these two, but they will all go together. And by symmetry also you can see that it must be 30 ahead of y1, which it is, क्योंकि 5 और 5 का रिजल्टेंट उनके बीच में आएगा। और मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 से, तो भाई √3 भी आ जाएगा। a रिजल्टेंट इसमें कैसे मिल जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of 5 being the angle between the two waves जिनको सुपरपोज करें। Does this make sense to all of you? Yes, sir. In general तुम लिख सकते हो for waves going in the same direction. Sir, एक मिनट दिखा सकते हो?
हो गया सर, हो गया। Okay, so in general, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। हमारे प्रॉब्लम में तो एम्पलीट्यूड भी सेम था, 5 था, लेकिन दैट कैन बी डिफरेंट, देयर इज नो इशू। दिस मेथड विल अकोमोडेट दैट इजीली। Superpose to give a resultant wave going in the same direction y resultant is a resultant sin, ये वाला पार्ट सेम आ जाएगा, लेकिन एक एडिशनल डेल्टा आएगा। डेल्टा होगा किससे? फेज डिफरेंस, जिसका जीरो ले रहे हो तुम, किसी का भी जीरो ले सकते हो, राइट? अल्टीमेटली फेज रेलिवेंट नहीं होता, फेज डिफरेंस रेलिवेंट होता है। लाइक आई कुड से कि इसका जो है a1 sin, आई विल गिव राइट दैट आल्सो, where, and this is just the thing which you studied with vectors also, where a resultant square is given by a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi, and tan delta is given by, do you guys remember? b sin theta upon a plus b cos theta. Correct. a1 sin phi over a1 plus a2 cos phi. सिंपली वेक्टर सम का रिजल्ट्स लिखा हुआ है कि जब रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका नीचे वाले वेक्टर से एंगल कितना होगा, जिसका नाम यहाँ पर फेज है, लेकिन बेसिकली इन द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स इट इज सिंपली कि रिजल्टेंट जो है नीचे वाले वेक्टर से कितना एंगल पर आ रहा है। सो दैट इज बेसिकली दिस ओवर दिस tan डेल्टा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? सो दैट इज हाउ यू फाइंड। ये हो सकता है कि दे माइट गिव यू दिस इन दिस फॉर्म। As an example, you might be given y1 as, let's say, a1 sin kx minus omega t plus some phi 1, and y2 as a2 sin kx minus omega t plus phi 2. अब phi किसको लेंगे? phi 2 minus phi 1. करेक्ट, phi 2 minus phi 1, किसी को भी जीरो कर दो। देखो हो सकता है कि लेट्स से कि लेट मी टेक न्यूमेरिकल्स एक्चुअली, लेट मी से कि y1 is let's say 5 sin kx minus omega t plus 30 degrees, and y2 is 7 sin kx minus omega t plus 90 degrees। देखो ये बात मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने इनको ये बना दिया है। हो सकता है कि ओरिजिनल प्रॉब्लम में इस फॉर्म में नहीं लिखे हो सकता है ये साइन लिखा हो, ये -7 cos ऑफ व्हाटएवर उल्टे का लिखा हो, वो सब तुम्हें पता है। फर्स्ट ब्रिंग देम इनटू द सेम साइन फॉर्म, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेम आर्ग्यूमेंट्स, देन यू कैन से कि कितना फेज डिफरेंस है करेक्टली, वरना वो इसके अंदर भी हिडन होता है और कॉस के अंदर भी हिडन होता है, क्योंकि कॉस साइन से भी फेज डिफरेंस पे होता है। So once you make them into the comparable things, then you can say, okay, this is the only phase difference, and so you can say कि इसको 0 पे डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वैसे तो तुम 30-90 पे बना लो, इट इज नॉट सच एन इशू कि अगर तुम फेजर बनाओगे तो 5 वाला जो तुम्हारा है वो छोटा फेजर बनेगा, मैं 2 फेजर बना दूंगा कॉन्सेंट्रिक,
5 वाला फेजर तुम्हारा 30 पे बन जाएगा और 7 वाला फेजर तुम्हारा 90 पे बन जाएगा. Ultimately, what is relevant is the angle between them, 60 degrees. You can always, for convenience, shift it back by 30 so that 5 comes on 0 and 7 comes on 60. Right? You can always take the smaller one as 0 and the bigger one as phi 2 minus phi 1. For the purpose of superposition, बिकॉज इनका रिजल्टेंट वेक्टर तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये दोनों जो है कैसे ओरिएंटेड है स्पेस में, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि दोनों कितने लंबे हैं और इनके बीच में क्या एंगल है. फिर चाहे वो तुम ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, नीदर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन how those two vectors are themselves oriented in space. The resultant will always have the same magnitude and will always form the same angle with the niche wala. Correct? For purposes of superposition, you will write this as 5 sine kx minus omega t. That's it. And this as 7 sine kx minus omega t plus 60 degrees. Basically, phi 1 plus phi 1 और phi 2 दिए हो अलग अलग से, तो phi 2 minus phi 1 is your phase difference between the two waves. ठीक है, all right? What if you are given 3 waves? Can you guys tell what you should do then? If you are given let's say 3 different sine functions and you're asked कि भाई बता दो सुपरपोज हो जाएगा इनका, तो क्या करना है? कोई बता दो शॉर्ट में. हाँ अर्नव, करेक्ट, यस. Anybody else wants to? If you are given 3, let's say y1 is 5 sine kx minus omega t plus 30, y2 is 7 sine k or maybe minus 7 cos omega t minus kx plus 90, y3 is whatever 4 cos something something. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तरीका है बढ़िया. 3 वेक्टर बना लो, तीनों का रिजल्टेंट ले लो, या 2 को पहले ऐड करके एक सिंगुलर बना लो, फिर उसका दूसरे के साथ ले लो. इट्स बेसिकली द सेम काइंड ऑफ लॉजिक. ठीक है, सो यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ द वेव्स. करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. Basically treating them like vectors, you add them up no matter how many there are. It makes no difference whatsoever. I mean, it's longer if there are more waves, but it's not logically more difficult or anything. It's the same logic applied repeatedly. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर. लेकिन अभी तक जो डिस्कशन किया है हमने यहाँ पर सुपरपोजिशन का, you must keep this fact in mind. All the waves that we are discussing here are going in the same direction. कोई भी मैंने अभी यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी और kx प्लस ओमेगा टी नहीं किया है. वो जब हम पढ़ेंगे लेटर, that's a separate topic in itself. That produces what are called standing or stationary waves, when two waves going in opposite direction superpose. ठीक है, ये जो है यहाँ पे केवल हो रहा है waves going in the same direction and as well as having the same frequency. ये necessity नहीं है. You can have waves of 2 different frequencies in the same medium. You must understand what kind of things are possible for 2 waves to be different and what kind of things are not. If there are 2 waves in the same medium, the thing that cannot be different for them is the speed. They must travel at the same speed. So अगर रूम में कोई चिल्ला रहा है और कोई गाना बज रहा है और पीछे से चिड़िया बोल रही है, तो वो तीनों साउंड उस रूम में सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे, बिकॉज वो स्पीड जो है वो उस रूम के गैस की प्रॉपर्टी है, जो मीडियम है. लेकिन तीनों का फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली अलग अलग है. चिल्लाने का साउंड का फ्रीक्वेंसी अलग है, गाना गाने का अलग है, चिड़िया के बोलने का अलग है. सो द फ्रीक्वेंसी और द सॉर्ट ऑफ द rapidity of the thing can be different, but the wave pattern moves at the same speed. Whether it's a low frequency pattern, whether it's a high frequency pattern, they all move at the same speed in the medium. Right? So it is possible that you have 2 waves going in the same medium. They are going at the same speed. So they superpose, they are sent together, overlapping. But one of them is a high frequency wave and the other is a low frequency wave. That is entirely possible. But we are not discussing it right now. We'll discuss it when we study sound. ठीक है, तो ये जो पार्ट अभी हमने किया, मैं इसका एक लॉजिकल फ्लो चार्ट बना देता हूँ तुम लोगों के लिए, कि वेव्स का जो सुपरपोजिशन है
ताकि तुम कॉन्टेक्चुअलाइज करते जाओ आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। उसमें ईदर यू आर सुपरपोजिंग वेव्स going in the same direction or going in opposite directions. ठीक है? In the same direction also, it can be that they have the same frequency or they have different frequency. So waves that are going in the same direction but have different frequency will produce a phenomenon that is called beats, that we will study in sound waves. Waves going in the same direction and having the same frequency will produce what we just discussed, your regular superposition, where A resultant square is A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको. Waves that are going in opposite direction produce what are called standing waves, which we will study both in this chapter near the end and in sound also. ठीक है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ में भी तुम दो में कर सकते हो, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. टेक्निकली स्टैंडिंग वेव्स तब प्रोड्यूस होंगे जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी के वेव्स होंगे. डिफरेंट होंगे तो वो एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज होगा जिसका कोई नाम नहीं होता है और जो हम पढ़ने भी नहीं वाले. ठीक है? तो अभी हमने ये वाला ब्रांच इसका कवर किया है और इसको करने के लिए I've told you two ways. Either you use trigonometric identities which you know or can manipulate trigonometric functions to yield a singular sine or cosine function, and then once you get it you know everything. Amplitude जो उसके आगे लिखा है, phase जो उसके लास्ट में लिखा है. या दूसरा तरीका है which is the better way is to turn them into phasors, both waves or three waves or four waves into phasors, and then vectorially add up the phasors and then treat it as the phasor for the resultant wave. ठीक है? सबको क्लियर हो गया पूरा लॉजिक? कोई कंफ्यूजन? All right. अब हम आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पर और इसके लिए सुपरपोजिशन पढ़ना जरूरी था, which is the other important issue that arises with waves. Which is the effect of a sudden change in the medium. So naturally देखो सीधी बात है, कोई भी ऑब्वियस सी बात है ये, अगर कोई वेव प्रोपगेट कर रही है और मीडियम में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी उसके इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टीज हैं और जो भी उसके इनर्शिया के प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहते हैं थ्रू आउट. मतलब पानी में वेव प्रोपगेट कर रही है और सेम पानी चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं से वेव रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कहाँ से होगा, कोई जगह नहीं है ऐसी. आई मीन इट्स नॉट, इट्स द सेम थिंग. एक स्ट्रिंग है, उस पर तुमने वेव चलाया तो क्योंकि हर जगह उस स्ट्रिंग के प्रॉपर्टीज सेम है तो वेव चलता रहेगा. लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता है कि मीडियम के प्रॉपर्टीज सडनली चेंज होते हैं, देयर इज अ सडन चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम व्हिच वी से इज अ नेक्स्ट मीडियम. आई मीन कॉमनली हम बोलेंगे इफ देयर इज अनदर मीडियम आफ्टर इट, राइट? तो देन एनी टाइम देयर इज सच अ डिसकंटिन्यूटी, दिस इज कॉल्ड अ डिसकंटिन्यूटी. Anytime there is a discontinuity in the properties of the medium, then some part of the wave partially is reflected back into the original medium जिधर से वो आ रहा था, and the remainder of the wave will be transmitted into the next medium. ठीक है? हाँ, तो सुपरपोजिशन वाला पार्ट हमने कर लिया, ये वाला पार्ट. तो पहले तो मैं डिफाइन करता हूं कि डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं वेव्स की लैंग्वेज में. place where the properties
of the medium, उसकी elasticity, उसकी inertia change suddenly. That is, you can also say a different medium begins. Right? हाँ चिन्मय, रिफ्रैक्शन भी वही चीज है. One second. तो एक सेंस में अब हम उसका इंटरनल डिटेल देखेंगे. रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन जो है उसको अब हम मोर मैथमेटिकल डिटेल में देखने वाले हैं इन द लैंग्वेज ऑफ वेव्स. अभी तक हमने उसको एक्सोमेटिकली पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर, तुम लोगों को ऑप्टिक्स के टाइम पे मैंने बताया था कि जब लाइट किसी डिसकंटिन्यूटी पे पहुंचता है, इंटरफेस भी कह सकते हैं उसको, डिसकंटिन्यूटी भी कह सकते हैं, बाउंड्री भी कह सकते हैं, whatever you want to call it, when the wave reaches there, in the case of light also we studied, but since ray optics was not concerned with how much of the wave goes in and how much of the wave comes back. See, you have to understand conceptually different topics addressed. Physics में क्या होता है कि टॉपिक्स तो बनाए हैं हमने पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, राइट, टॉपिक्स के नाम, बट एक्चुअली तो फिनोमेनन है नेचर में एक कॉम्प्लिकेटेड सा. तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स बन गए कि भाई हो तो रहा है कि लाइट आ रही है और एक ग्लास के स्लैब पे पड़ रही है कि विंडो के पेन में बाहर से सनलाइट आ रही है एट एन एंगल और विंडो के ग्लास पे पड़ रही है, और फिर मैं कुछ देख रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ कि लाइट अंदर भी आ रही है क्योंकि रूम में इल्यूमिनेशन हो गया है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं बाहर खड़े होकर विंडो में सन को भी देख सकता हूँ. तो क्लियरली कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रही है, तभी मैं सन को देख पा रहा हूँ विंडो में. तो मुझे पता है, ऑब्जर्वेशन ये है नेचर में कि भाई कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा होगा और कुछ पार्ट अंदर आ रहा होगा. सिंपली व्हेन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन कि जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया वो किधर गया, डिड इट गो हेयर 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 और हेयर, एंड जो पार्ट ट्रांसमिट हुआ वो किधर गया, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, दैट डोमेन इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स. व्हेन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन विच वे दे वेंट, ज्योमेट्रिकली कहाँ गए वो, किस तरफ गए, जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ वो किधर गया और जो पार्ट ट्रांसमिट हुआ वो किधर गया, जब तुम केवल उसमें इंटरेस्टेड होते हो, देयर डायरेक्शंस, then that's called ray optics, right? Because you're dealing with rays and they tell you which way they went. But ray optics does not concern itself with how much of it कि अगर 100 units of energy आया तो क्या 60 रिफ्लेक्ट हुआ 40 अंदर गया, या 50-50 हुआ, या 10 रिफ्लेक्ट हुआ 90 अंदर गया. इस पे रे ऑप्टिक्स कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि रे ऑप्टिक्स की थ्योरी इसको एड्रेस नहीं करती है. ये थ्योरी जो है वेव्स एड्रेस करता है, वो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो डिस्कशन चल रही है कि वो जो स्प्लिट हुआ है वो 90-10 में होगा, 40-50 में होगा, कैसे स्प्लिट होगा, और डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ मीडिया यू विल फाइंड दैट इट विल इवेंचुअली डिपेंड हाउ मच ऑफ इट रिफ्लेक्ट्स एंड हाउ मच ऑफ इट ट्रांसमिट्स. विल डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द एंगल फॉर लाइट, एंगल पे भी डिपेंड करता है. लाइट नॉर्मली गिरेगी तो उसका डिफरेंट अमाउंट ट्रांसमिट और डिफरेंट रिफ्लेक्ट होता है, और एंगल पे गिरती है तो वो सब हम नहीं पढ़ने वाले हैं. हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस ही पढ़ रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हम वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो हमारा वेव तो ऐसे ही चलेगा, और उसमें डिसकंटिन्यूटी का मतलब होगा दूसरा टाइप का स्ट्रिंग चालू हो गया, तो एंगल पे तो कुछ आ नहीं सकता है. तो वाला फैक्टर तो हम इधर एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा सिचुएशन वन डायमेंशनल है. लेकिन दोनों मीडिया आपस में कितना डिफरेंट है ये प्रॉपर्टी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे कि वो वाटर से ग्लास में जा रहा है कि एयर से ग्लास में जा रहा है कि ग्लास से दूसरा टाइप ऑफ ग्लास में जा रहा है, कितना वो डिफरेंट है आपस में. उससे हम डिड्यूस कर पाएंगे कि कितना पार्ट उसका वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कितना पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाएगा. ठीक है, दैट इज समथिंग वी विल बी एबल टू डू. ठीक है. But even before that, there are a few things which you can say straight away. If wave on a string का एग्जांपल ले लो, पहले मैं फैक्ट लिख देता हूँ. फैक्ट ये है कि at any discontinuity an incident wave is partially reflected and partially transmitted. ट्रांसमिटेड जो वर्ड है उसका लाइट के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड होता है रिफ्रैक्शन. तो ये ओल्ड यूजेज है.
लाइट के जब, क्योंकि ज़्यादा स्टडी लाइट का हुआ पहले इन द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकली स्पीकिंग, तो उधर में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन नहीं बोला गया उसको, फॉर वट एवर रीजन द वर्ड यूज्ड वाज रिफ्रैक्शन, बट रिफ्रैक्शन इज सिंपली ट्रांसमिशन इनटू द सेकंड मीडियम, ठीक है। तो ये तो फैक्ट है, हर वेव के लिए ट्रू है। लाइट के लिए ट्रू है ये। लाइट अगर एक ग्लास विंडो में से आ रही है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तभी तुम ग्लास विंडो में बाहर का भी चीज देख सकते हो अगर तुम बाहर से खड़े होकर देखोगे, और लाइट अंदर भी आ रही है क्योंकि अंदर भी इल्यूमिनेशन है। साउंड के केस में ट्रू है, अगर मैं इस कमरे में बैठ के बात कर रहा हूँ तो जो मेरा साउंड वेव जनरेट होकर वॉल को हिट कर रहा है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए मेरा साउंड जो है इस कमरे में लाउडर सुनाई देता है कंपेयर टू इफ आई वाज स्पीकिंग इन एन ओपन फील्ड। अगर मैं मान लो एक लेक्चर ले रहा हूँ, तुम लोग बैठे हो मेरे सामने, और मैं खुले मैदान में वो लेक्चर लूंगा, तो आई विल हैव टू येल क्वाइट लाउडली टू बी एज ऑडिबल टू द लास्ट पर्सन compared to if you are in a room, because a lot of the sound that I'm generating will hit the walls and come back, so I will sound quite loud actually. One second. ठीक है, but also if somebody is in the other room और उसने अपना कान लगा के रखा है वॉल पे दूसरा साइड से, so they will also be able to partially hear me. इसका ऑब्वियस मतलब ये है कि साउंड वेव जो वॉल को हिट कर रहा है वो कुछ जो है वापस रूम में आ रही है और बाकी जो है वॉल के थ्रू ट्रांसमिट होके दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट जब वो वॉल के थ्रू जाता होगा तो फिर जब वॉल के दूसरे बाउंड्री पर पहुंचता होगा, अनदर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट टू अंडरस्टैंड, मैं इस पे खत्म करते हैं हम कि इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल करेंगे। बट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज यू शुड नॉट थिंक that the wave is getting reflected because it is hitting the boundary or it is hitting the discontinuity. Again, it's a common mistake to make because we tend to think of everything in terms of being objects, but waves are not actually objects. When you say that a sound wave hits a wall, or when you say when a light wave strikes a wall or whatever, when you say a wave on a string hits a interface, a boundary, a discontinuity, it doesn't reflect because it is hitting that thing. With a material particle, you hit it, and then you get a kind of this thing and you come back. Waves do not reflect. The word reflect does not mean the wave is hitting and coming back. ठीक है? So you should not think कि अच्छा इसका मतलब कि लाइट अगर ग्लास को हिट करेगा तो वापस आएगा, लेकिन अगर ग्लास के अंदर चलता हुआ लाइट उसके एंड पे पहुंचेगा और आके वैक्यूम है तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम से कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है? ये गलत है, क्योंकि वेव कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं जो इधर से आ रहा है और उधर वाला चीज को हिट करके वापस आ रही है। वेव डिस्कंटिन्यूटी पे स्प्लिट हो जाता है, whether the discontinuity is between a dense and a rare medium, or whether your wave is coming from a rarer medium and getting into a denser medium, or whether it's coming from a denser medium and going to go into a rarer medium. In both cases, at the discontinuity, partially the wave will reflect and partially the wave will transmit. So if you consider a slab of glass जिसके दोनों तरफ वैक्यूम है, तो उस पर अगर तुम लाइट डालोगे एट एन एंगल तो कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी लाइट इसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन जो ट्रांसमिट हुआ है वो उधर पहुंचेगा तो फिर उसमें से कुछ पार्ट फिर ट्रांसमिट होगा और बाकी रिफ्लेक्ट होगा। यू शुड नॉट थिंक कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों हो रही है, वैक्यूम से कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे ग्लास से भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। लाइट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट विच इज हिटिंग द ग्लास एंड रिफ्लेक्टिंग. लाइट इज अ वेव विच स्प्लिट्स एट एवरी डिसकंटिन्यूटी, और फिर यहाँ पर भी उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो इट्स एन एंडलेस प्रोसीजर, बट ऑफ कोर्स इवेंचुअली द वेव कीप्स लूजिंग एनर्जी. हर रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन पे कुछ 20% बाहर, 80% अंदर, फिर 20% बाहर. तो प्रोग्रेसिवली जो अंदर वाला लाइट है विल रैपिडली लूज एनर्जी एंड विल काइंड ऑफ फेड, यहाँ से निकल के और यहाँ से निकल के. But it will reflect and transmit at every discontinuity, whether it's between a rare and a dense medium or between a dense and a rare medium. Hetu, जो तुम पूछ रहे हो, does the wave have no momentum? Waves do have momentum. It is actually true that waves have momentum. Not that we'll be studying it at this level, but it is true that all waves do have momentum.
except maybe there are certain waves which won't have momentum, but they are also not strictly waves in that sense. Like a Mexican wave has no momentum. But light definitely has momentum. So it is true that when light hits glass, it is actually applying a force on that glass. But that does not mean that the force is being applied on light in a sense and it goes back. ठीक है? Okay. Sir, वो समझा कि discontinuity से क्यों reflect हुआ, मतलब सब नहीं, क्यों ये सवाल तभी अराइज होता है जब तुम ये सोचते हो कि लाइट कोई ऑब्जेक्ट है जो चीजों को हिट करके, मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि इस सवाल का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होना चाहिए कि वो इधर क्यों रिफ्लेक्ट हुआ. अगर तुम्हें ये क्रेडिबल लग रहा है तो वो सिर्फ इसलिए लग रहा है बिकॉज यू आर ट्रीटिंग लाइट एज अ पार्टिकल, यू आर ट्रीटिंग लाइट एज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट विच इज हिटिंग, एंड दैट्स द रॉन्ग वे टू थिंक अबाउट इट. सो यू शुड नॉट फील कि इधर तो ठीक है होना चाहिए लेकिन इधर क्यों हो रहा है, ये सवाल अराइज ही नहीं होना चाहिए. अगर तुम्हें लग रहा है इधर क्यों हो रहा है तो तुम्हें ये भी लगना चाहिए कि इधर क्यों हो रहा है, और अगर तुम इससे ओके हो तो तुम इससे भी ओके होनी चाहिए. नहीं सर, मतलब कोई भी डिस्कंटिन्यूटी पे हमेशा जैसे जा रहा है वैसे क्यों नहीं जाता है, वो पूछ रहा हूँ. अच्छा, ये पूछ रहे हो कि होता ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस. हाँ. हाँ, ओके. सो दैट अगेन, सो क्या है कि वही मैं बोल रहा था, लाइक इफ यू थिंक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट वी आर स्टडीइंग एज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर where the top level topic is a superficial treatment, so then ray optics is at the very top where it only has theory which tells you which way the light will go. Then if you want to find out how much of it goes here and there, then you have to go into deeper and say, okay, but light is a wave. I can't simply treat it with mathematical lines. There is some wave nature in it, and let us look at that, and that analysis will tell us how much of it splits. But if I now want to say why is it actually splitting, like what is in it in the wave that when it reaches some place after which the properties change, why should it start coming back and why should it not continue, then you have to say what kind of a wave is it. So then if you're saying, okay, we are talking about light, then light is an electromagnetic wave, so then you have to go a layer deeper and you have to say what are the electrical properties of the light wave, what is the electrical field in it, what are the electrons in the glass doing to that electrical field, and that will tell you it is an electromagnetic phenomenon, and the reason some of it will be generated in the backward direction has to do with the electromagnetics of the situation. ठीक है, so I will briefly touch on that. अच्छा क्वेश्चन है ये कि क्यों कोई वेव रिफ्लेक्ट होगा, बट अल्टीमेटली दैट इज द बॉटम लेवल स्टोरी, एकदम नीचे अंडर द हुड है कि हो ही क्यों रहा है, वो सबसे डीप लेवल स्टोरी है. मान लेते हैं कि हो रहा है तो कितना कितना हो रहा है, वो वेव्स का लेवल का स्टोरी है, जहां पे हम वेव को मैथमेटिकल पैटर्न की तरह ट्रीट करके फाइंड कर सकते हैं. और हो रहा है और कितना कितना हो रहा है वो भी अब हो गया, तो सिर्फ बस ये देखना है कि किस तरफ जा रहा है, तो वो सबसे सुपरफिशियल थ्योरी है, इन विच केस यू डोंट इवन नीड टू ट्रीट इट एज अ वेव. You can simply have some laws which tells you what happens. If it comes at this angle and you know the two mu's, then it goes at that angle. So you have very top level laws which tells you where it goes. ठीक है? Okay, sir. All right. Any other question? खत्म करें फिर? चलो ठीक है. All right. Thank you all. Bye bye.